Hello beautiful souls, welcome to my channel Mystical Rani. So today we are going to do a general love reading, and in this reading we will see the energies around love. So this can be for the singles, for those who are in committed or even in a no contact situation. This is a timeless reading and this is for all signs, so please take what resonates with you and leave the rest. For more accurate and personal readings you can reach out to me. ओके सो इस रीडिंग में हम देखेंगे अभी रीसेंट पास्ट की क्या एनर्जीज थी, अभी की क्या एनर्जीज हैं एंड द नियर फ्यूचर एनर्जीज. ओके सो प्लीज़ थिंक ऑफ द पर्सन फॉर whom you are watching this reading and we will see what are the energies here. Right, so if you are single you can just see the readings and connect with it if it resonates with you. So the recent past. Alright, Nine of Swords, please clarify the... Wow, Nine of Swords with Page of Swords. I see something happened in the recent past. Maybe something, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप you are just overthinking a lot. Maybe कुछ communication issue था या कुछ communication gap जैसा मुझे feel हो रहा है, या there was a misunderstanding. कम्युनिकेशन रिलेटेड आप या तो आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाए या वो किसी ऐसी तरह से एक्सप्रेस हुई है बात, या वो सिचुएशन इस तरह से सामने आई है कि वो एकदम अलग ही टर्न चला गया है उसका. राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट समवेयर द कनेक्शन इज़ ब्रोकन, एंड बिकॉज द कनेक्शन इज़ ब्रोकन और इट इज़ नॉट हाउ इट यूज टू बी बिफोर. राइट, आप जितना अच्छा आपका पहले बॉन्ड था उतना अच्छा बॉन्ड नहीं रह गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट I see, one of the other person in here is overthinking. It's like creating different scenarios in mind. अपने mind में अलग अलग scenarios create करके illusions हो रहे हैं, and उस वजह से there is this anxiety energy. There is energy of overthinking. There is energy of not able to think clearly. कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या गलत हो गया था जिसकी वजह से इस तरह से ये डिस्टेंस और डिफरेंसेस आ गए हैं कनेक्शन में. या लेट्स सी वन मोर कार्ड ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द रीसेंट पास्ट इन लव. Yeah, so I see there was somebody in this connection who was very loving, who was very nurturing and who was very caring, and now this person, जो भी ये person था, it can be you or your person energy, the roles can be reversed here, so please take how it resonates. So जो ये person था जिसके साथ ये communication टूटा है, somewhere that person has taken a stand for himself or herself. उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए stand लिया है, जो उनके लिए भी नई चीज़ थी करना, but that person was like, now I will decide and see what is okay to me and what is not, and wherever required I'm not afraid to set boundaries. Okay, that is what I see, because this person is somebody who is very loving, very nurturing, very caring. Maybe this person was the one to give that love, care and nurturing energies in the connection. Okay, अब now this person was like कि अब और tolerate नहीं करना है, whatever is not acceptable and I am not afraid to speak it out. And जब उन्होंने ये चीज़ express की, which was not usual thing, so उसके वजह से there is this energy of कि how what happened, why this person has turned like this, and it's like ये सब क्या हो गया, ये सब नहीं होना था, how it happened, I never thought कि connection इस तरह से end होगा, या इतना misunderstanding होगा, या things will be so difficult to bring it back together. Yeah, that is the recent past. That's what I see has happened. Okay, let's see what's the current energies in love. What's the current energy in love? 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 Okay, we'll take this. Alright. Yeah, I said, right, there is this energy of overthinking.
one more on what's the current energy in love. All right. Okay. ओके सो यहाँ पे अभी की सिचुएशन क्या है ना कि जो चीज़ चली गई है उस पर फोकस हो रहा है. सो अगर आप उस चीज़ पे फोकस करोगे जो आपके पास नहीं है या जो चला गया है, आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. राइट, एंड दैट इज़ वॉट यू आर एडवाइज्ड टू, कि आप अपने इंट्यूशन को सुनना है आपको. आपके हो सकता है आप अभी दिल कुछ और बोल रहा है, आपका मन कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, उस तरह से अलग अलग चीज़ें चल रही है और आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो सिचुएशन में कि क्या करना है क्या नहीं. एंड समवेयर इट्स लाइक द एनर्जी ऑफ फोकसिंग ऑन वॉट इज़ गॉन, क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क. राइट, सो जो चीज़ चली गई है उस पर आपको रोना नहीं है, रैदर यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. लिसन टू योर इंट्यूशन एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव. आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको. आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है. ओके, सो इट्स लाइक आपको अपने लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है. देयर मे बी समथिंग विच विल बी डिस्क्लोज्ड टू यू. कुछ आप हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता चले जिससे आपको ये मूव ऑन करने में थोड़ा और ईजी हो जाए. राइट, because there is this energy of passion. Okay, I see you are ready to move on in life, but emotionally somewhere I feel you are still crying over the past. Okay, so you want to move on in your life, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट इमोशनली आपको लगता है आप कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट कनेक्शन में, पास्ट पर्सन से, पास्ट रिलेशन में इमोशनली स्टक हो. एंड टू कम आउट ऑफ दैट स्टक एनर्जी यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. जो हो गया, that whatever has happened, and now listen to your intuition and move ahead in your life with passion, with grace, and with that confidence. Okay, because I see there is somebody maybe interested in you. Somebody is interested in you for sure. I don't know, I'm getting it very strongly कि maybe या तो currently आपके आसपास कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या आपको पसंद करता है, ऐसा कुछ एनर्जी है. आपकी भी एनर्जी हो सकती है. इट्स ए वर्ल्ड कार्ड. ऑलराइट, सो या देयर इज़ समबडी अराउंड हु इज़ वॉचिंग ओवर यू एंड दे फील दैट कि ये कनेक्शन इज़ अ completion thing. Okay, this is also telling me that कि whatever has happened, it's a closed thing. You need to close that chapter. आपको अपने उस लाइफ के चैप्टर को क्लोज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है. आई कैन नॉट शो दिस कार्ड कम्प्लीटली, सो आई जस्ट टर्न इट ओवर, बट दैट इज़ वॉट आई सी हैपनिंग हियर. आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है विथ पैशन. या सी यू आर स्टिल, देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन. आई सी there is a soulmate connection coming in, but you need to come out of that past energy. You need to come out of that past connection. Yeah, you are being indecisive. आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. राइट, आपको एक बार आपको लगता होगा कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, दूसरे टाइम आपको लगता होगा कि नहीं, रहने दो जो था, लेट इट बी, आई फोकस ऑन माई ग्रोथ. मैं अपने वर्क पे ध्यान दूंगी, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दूंगी, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दूंगी. और फिर कभी आपको 2 दिन बाद लगेगा कि नहीं, लेट्स फोकस ऑन इमोशंस, लेट्स फोकस ऑन लव लाइफ. सो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो. ओके, बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग एट एन इमोशनल लेवल विच इज़ नॉट लेटिंग यू टू सी थिंग्स क्लियरली. आप क्लियरली चीज़ें देख नहीं पा रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप क्लैरिटी के साथ कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. there is an option, there is a need for you to think clearly. Okay, yeah, maybe for some of you are being very patient. आप बहुत आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है टू डील विद दिस ऑल दिस. आपको पास्ट को भूलना है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है. मे बी फॉर सम ऑफ यू आई सी यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स विद पैशन. आप अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क में ज़्यादा पैशनेटली ध्यान दे रहे हो, ना कि इमोशनल लेवल पे. एंड टू डील विद दिस सिचुएशन आप बहुत पेशेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो. मे बी आपके आसपास के लोगों को आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयर होते हुए दिख रहे हो. या ओके, दैट इज़ व्हाट. या यू आप अपने इमोशंस को बहुत स्टेबल रख रहे हो. राइट, यू आर नॉट लेटिंग इमोशंस ओवर पावर यू. आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो. एंड यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन विद सो मच ऑफ मेच्योरिटी. एंड एज आई सेड, आप अपने वर्क लाइफ में भी, आई थिंक फॉर सम ऑफ यू आई सी, आप अपने
लव लाइफ पे ज़्यादा ध्यान ना दे के आप अपने वर्क को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो. मे बी सम ऑफ यू, आई स्ट्रांगली फील यू आर फोकसिंग ऑन अ साइड हसल अदर देन समथिंग विच यू ऑलरेडी हैव, एंड यू आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग समथिंग न्यू. Okay, so that is also I see. Let's see what's happening in love, the near future energies in love. So near future energies in love, what you are doing is good. आप जैसे अगर आप अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हो, अपने स्टार्टिंग समथिंग न्यू, फोकसिंग ऑन समथिंग न्यू, दैट इज़ गुड. बट समटाइम्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस ऑल्सो, है ना. आप इमोशंस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है. Yeah, you need to come out of this stuck energy. You are still stuck on the past experience, past people. Yeah, there's this stuck energy. You need to come out of this stuck energy to move ahead in your life. Yep. Alright, let's see what else is coming in the near future. What do you have to do to come out of this stuck energy? To move on in your life, you need to come out of this stuck energy. What you have to do to come out of this stuck energy is, now let's see, what you have to do to come out of this stuck energy. Yeah, see, I see there is a person coming in. Your person is on the horizon. Like, the person is, your soulmate connection is waiting for you, but it will happen only and only when you are out of your stuck energy. Somebody is watching you from afar. Maybe somebody is watching your social media, and this person may have a soulmate connection, but until and unless, जब तक आप stuck energy से बाहर नहीं आओगे, this person won't be able to make a move towards you. तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में आप आगे बढ़ो, तो आपको इस स्टक पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, और वो आप व्हाटएवर यू आर डूइंग, ओके, आप अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने इमोशंस को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत मेच्योरली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, विच इज़ ऑल द राइट थिंग टू डू. बट आपको अपने आप को हील करने की भी ज़रूरत है. और हील कैसे करना होता है कि आपको लेट गो करना होगा. ओके, सो वट एवर हैज़ हैपेंड, यू नीड टू जस्ट लेट इट गो. डोंट कीप क्राइंग ओवर इट. जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव. अंडरस्टैंड द लेसन जो आपको वो सिचुएशन या वो कनेक्शन आपको क्या लेसन सिखा के गया है, या वट एवर हैज़ हैपेंड, आपको उसको अपने लेसन को सीख के उसको आगे बढ़ना है उससे. ओके, उसमें स्टक नहीं रहना है. तो जब तक आप स्टक हो, दिस पर्सन वोंट बी एबल टू मेक इट टू यू. ओके, और आपको इक्वली ओपन भी होना है. राइट, सो मे बी जैसे कि अगर दिस पर्सन इज कमिंग expressing their feelings, their love to you, and you are like, no, I don't want to talk to anybody, I am not looking into all that, then this connection may not stay for long, right? And maybe this is a genuine connection, you never know, right? So this is somebody who is watching you from afar and is waiting, and this is like a frequency match, right? तो आपको अपनी frequency को भी match करने की ज़रूरत है. You need to come out of this lack energy into the energy of healing and overcoming the past wounds, healing the past wounds and overcoming from the past traumas. Yeah, okay, just work on yourself. आप अपने wounds पे ध्यान दीजिए, अपने emotions को heal करिए, अपने आप को heal करिए, and then things will work out for your good, for your growth. Alright, we'll take one last card as what's the advice for you, what's the advice for you in your love life. What's the advice for you in your love life? What's the advice here? Yeah, see, I said somebody is watching over you, and this person, whoever this person is or will be, ये ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ दे आर प्लानिंग टू कम विद एन ऑफर. मे बी दिस पर्सन इज वॉचिंग ओवर यू एंड दे वॉन्ट टू हैव अ family kind of commitment with you. They want a family with you. They want to settle down with you, thinking of the long term. Okay, but आपको अगर ये आप deep down you are looking for this thing, but अगर आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे तो आपका ये ब्यूटिफुल फ्यूचर विल टेक लॉन्ग, राइट? सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस पास्ट एनर्जी टू एन्जॉय दैट हैप्पीनेस एंड टू हैव दैट फैमिली बॉन्ड विच यू आर सबकॉन्शियसली लुकिंग फॉर. ओके, तो आप अपने पास्ट को आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, सो दैट द ब्यूटिफुल फ्यूचर विच इज़ कमिंग अहेड, it won't take long
to manifest. Okay, now we'll take some angel messages, angels and ancestors messages. What's the advice here from the angels and ancestors deck? Alright, let's take both. Oh, we have 3. Alright. So mirror guardian, as I was saying, right, you need to see, आपको पास्ट में देखना है कि वो पर्सन, वो कनेक्शन आपको क्या लेसन सिखा रहा था या सिखाने की कोशिश कर रहा था. तो आपको पास्ट में देखना. इट्स लाइक टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. ओके, सो इट्स लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या एक सेम पैटर्न आपकी लाइफ में चलता आ रहा है. अगर वो सेम पैटर्न है तो वो पैटर्न आपको क्या सिखा रहा है. इज़ इट सेल्फ लव, इज़ इट सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़ इट सेल्फ वर्थ, is it like the lesson to take a stand for yourself, is it the lesson कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है. वो क्या सिखा रहा है आपको वो कनेक्शन. ओके, सो यू नीड टू लर्न योर लेसन एंड मूव अहेड इन योर लाइफ. अनदर इज़ यू नीड टू बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग. एज आई सेड अगेन, अगर आप पास्ट की एनर्जी में रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे. तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा. अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे सिचुएशन से, पास्ट से आप बाहर नहीं निकलोगे, सो यू नो दैट फियर की पास्ट में जो हुआ वो रिपीट हो सकता है. नो, इट्स नॉट दैट. यू नीड टू फाइट योर फियर्स एंड मूव अहेड इन योर लाइफ. आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है. एंड बी द लाइट. सो यू डोंट हैव टू डिम योर लाइट. ओके, you don't have to dim your light because somebody else did wrong to you or that person did not take a stand for you. अगर किसी ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, so you need to आपको अपनी एनर्जी उस पर्सन को नहीं देनी है. आपको अपनी एनर्जी वापस लेनी है. आप अपनी एनर्जी अगर उसको दे रहे हो तो आप अपनी लाइट को डिम कर रहे हो, राइट. तो आपको अपनी एनर्जी, अपनी लाइट को डिम नहीं करना है. रैदर अपने लव को, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करिए एंड देन यू विल start seeing the positive changes in your life. Okay, so that was the reading, guys. I liked it. The reading is very beautiful. All you have to do is just come out of your past energy, stuck situation, and things will change in your life for good. Okay, so that was the reading, guys. Please do claim the positive energy from this reading. If you have liked it, please do like this video, and if you have not subscribed to my channel, I request you to please subscribe to my channel for daily tarot insights. Bye bye.